Hello, dear students. Assalamu alaikum, namaste, and good morning. And let me tell how are the tenses there. Okay, how much you are enjoying, how much you are learning, how much you are getting all the important concepts of the tenses. So far, we have learned present simple and present progressive tenses. And now it's turn to learn the present perfect tense there, the third number tense of present. While we have, I mean, a bit of the practice, we have a few sentences for the practice. So we'll do first the practice of all these, sentences for both of the tenses there. So today I also got a few sentences to make you practice. While I also, to start present perfect tense as well. It's already decided, it's already, assigned, announced there that we have present tenses. So now students actually fail to understand. They mean that when present tense is announced, it means that only present simple tense is being given in the upcoming general test. It's not so. Present tense means all the present tense mean all the present tense, right? So here you have to see that all of the present tenses are included in your general test. So I'm slowly, uh, teaching and slowly, explaining all the things because it's a very important area. And last night, you also came across to see, the syllabus prescribed, the syllabus recommended, are finalized by PMC or rest of the, testing institutions. The tenses are included there. So they are very important one. And that's why you should please lend your entire focus, your attention, your concentration, and be concentrative. And I mostly, come to encourage and motivate you to, ask you repeatedly that please you should stay connected. Okay, if you fail to, concentrate, if you fail to uh, put any concentration, that will really be a dreadful one because it's a time of competition. If you lose 1 mark there, and that mark will, teach you the lesson. That mark will give you the lesson. It's a very severe lesson. Very hostile and bitter lesson. That is very harmful one there. So almost, I say, those students, I tell you, those students whose English is flawless, whose English is fantastic, those students who enjoy, learning or speaking English. We have many students, many such students. They love, learning English, and they are very good students. They are going ahead, they are leading students in English subject, particularly you. So they don't have any worry about, English is actually a subject, it actually offers you bonus marks. One, it's quite easy, and second, you can attempt all the questions in English section easily, right? Rapidly or quickly. So you never actually consume more time attempting the questions of English section. That's why students prefer to learn, and they actually feel comfortable. So I advise you, please. I would mostly students skip, but later on when they come across this, section there, and they fail because of, a few marks. They fail because of few marks, and these few marks are there, in this section, which they should be taken. They should be obtained. These marks should be obtained there. While they, become careless, they ignore, they neglect the important, things, and that's why they get punished there, right? Let's come to have more practice of present progressive tense or present simple tense, and then we'll start the third tense, the present simple tense there. So here I've got a few sentences, dear students, and these sentences are, like that. So let's come to follow them. तो हम जो वो प्रेजेंट, पता नहीं अब आपको ही देखकर सेंटेंसेस को और इनको देखकर आपको, यानी ये डिसाइड करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो
यानी राइट टेस्ट योरसेल्फ वाली बात है। तो मतलब जितनी प्रैक्टिस हो सकती है मैं कोशिश करके प्रैक्टिस करवा के आपको मतलब ये क्लियर करवाता हूँ सेंटेंसेस, ताकि भी आपका मतलब ये बहुत अच्छा हो जाए सेक्शन इंग्लिश का। और सोच रहा हूँ कि आपके मतलब रिवीजन के क्लासेस जो होते हैं मतलब रिव्यू भी करवाऊँ, जितनी भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं उनका रिव्यू भी करवाऊँ, कहीं पे गलती हुई हो, कहीं पे जो है वो कोई प्रॉब्लम हुआ हो आपसे, तो वो भी मतलब जो है वो क्लियर हो जाए। तो वो भी इंशाल्लाह अभी हमारे पास टाइम पड़ा है, तो उसका भी कोई मैं मतलब टाइम टेबल या कोई प्लानिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हम जरूर करेंगे। और फिर जब कोई चीज नोट करें, वो चीज सही नमूने से नोट करें, दुरुस्त तरीके से नोट करें। अभी किसी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि किसी स्टूडेंट्स ने मतलब कोई यानी कोई मतलब कल का मेरा लेक्चर था, तो वो शायद फिजिकल क्लास का लेक्चर था, तो वहाँ मैंने नहीं पढ़ाया ऐसे, लेकिन वो ऐसे मतलब लिख के बैठे हैं और पूरा गलत लिखा हुआ है कि वो सेंटेंस है या क्या है पता नहीं। तो मतलब ये चीजें हम जब लिखते हैं नोट करते हैं तो गलतियां करते हैं, और फिर बाद में जो वो पूरा मतलब टीचर के ही खाते में आ जाता है मामला। तो तब भी थोड़ा केयर करें। हाँ, या गलती होती है टीचर्स, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होती, मैं तो बहुत ज्यादा गलतियां करता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये करें। अच्छा, अब तो आए मतलब हम इसको देखते हैं। यानी यहाँ पर सेंटेंस नंबर फर्स्ट है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम सिर्फ जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ दो टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक साथ, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस की कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही डैश अ गिफ्ट। he is always happy when he dash a gift। ठीक है, he is always happy when he dash a gift। तो अब when he will receive a gift, when he received a gift, when he receive a gift, when he receives a gift। तो आप बताएंगे इनमें से कौन मतलब जो है वो राइट ऑप्शन या राइट चॉइस हो सकती है। ठीक है, he is always happy when he dash a gift, कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं कौन सा करेक्ट हो सकता है। शाबाश, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यानी इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हो रहा है वो डी जो है वो राइट ऑप्शन हो रहा है। ही इज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही, एक तो देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तो देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम रिसीव्स लगाएंगे, मतलब एस और एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एक बात। नंबर टू, मतलब दो टाइप के कंजंक्शंस के लिए मैंने मतलब आपको पढ़ाया और बताया भी है, पहले भी पढ़ाया था आपको, कंडीशनल वगैरह के अंदर बहुत पढ़ाया था। तो मैंने तब भी आपको बताया था डिलीवर करके कि जब आपका टाइम कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, टाइम कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं या कंडीशनल कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, अगर ऐसे कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं तो फिर यानी उस सेंटेंस के पार्ट में या उस टेंस को आप सिंपल टेंस करके लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखें, बल्कि उनको इस तरीके से समझ लें कि मॉडल वर्ब्स को ना लिखें। मतलब कहीं पे रेयरली मैं मानता हूँ, फिर आप क्या करते हो फतवा दे देती हो कि सर मैंने तो यहाँ पे पढ़ा, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, लैंग्वेज वास्ट है, बहुत है, हमें टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सीखना है, टाइम के हिसाब से पढ़ना है। अब आपका टाइम, आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ये नहीं कि मुझे जो है वो पूरी चीजें यहाँ पर मतलब पढ़ानी है या सब कुछ बताना है हमें, तो मतलब ये काम नहीं चलेगा। हमें तो वही जो मतलब चीजें हमारे सिलेबस के साथ, हमारे टेस्ट के साथ, उसके बाद जब आप फ्री होंगे तब माशाल्लाह बैठना, मैं पढ़ाऊंगा और हम पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा आपसे। तो यहाँ पे देखो रिसीव्स आएगा, इज ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही रिसीव्स, कि जब ऐसे कंजंक्शंस आ जाए, जैसे टाइम कंजंक्शन पढ़ाए, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज, ये, या इफ, या अनलेस, मतलब ऐसे कंजंक्शन आएंगे तो आपको यानी टेंस जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो टेंस कौन सा होगा? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट के टेंस, यानी मॉडल वर्ब्स नहीं इस्तेमाल करना, यानी मॉडल वर्ब्स नहीं इस्तेमाल करने, आपको विल नहीं इस्तेमाल करना, आपको कुछ नहीं इस्तेमाल करना है, आपको वुड नहीं इस्तेमाल करना है। आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी, आपकी ये एरर हो जाएगी, ये आपको नहीं इस्तेमाल करना, केयर करना है। नंबर टू पे हम आते हैं। A camel dashed in a water to last for several days। A camel dashed in a water to last for several days।
तो अब देखो मतलब ये इसकी मतलब केमिल की देखो यानी एक इंस्टिंक्ट है, और ये होता है जनरल एक्शन है। देखो जनरल एक्शन है, ये होता रहता है, मतलब ये एक इसकी एबिलिटी है जो है इसके अंदर। तो यहाँ पे ना कोई चेंजिंग हो रही है, ना एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात हो रही है। तो केमिल मतलब ड्रिंक्स इनफ वाटर, मतलब ये है इसका। तो फिर भले ही 2 दिन 3 दिन या पता नहीं मतलब ऐसा कुछ हो तो हो सकता है। तो केमिल ड्रिंक्स इनफ वाटर टू लास्ट फॉर सेवरल डेज। तो ये भी जनरल एक्शन की बात हो रही है। जब जनरल एक्शन की बात हो रही है तो देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, समझे। तो प्लीज आप इनको अब आज में ये फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप प्लीज जो है वो इसको गौर से समझें। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है। नंबर 3 के अंदर देखें सेंटेंस नंबर ही सेल्डम। अब कीवर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड देखो दिया हुआ है इसके अंदर, सेल्डम वर्ड की है ना, तो कीवर्ड लिखा हुआ है इधर। अब कीवर्ड जैसे लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स जो हैं, हमने कीवर्ड जो टाइम वर्ड्स, यूजुअली, ऑफ्टन, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, ऐसे मैंने कीवर्ड्स आपको बताए पढ़ाए। तो ये जब वर्ड्स आते हैं तो आप बताएंगे कौन सा टेंस इस्तेमाल करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो हर चीज क्लियरली मतलब सेंटेंस खुद के अंदर देखो कितना हिंट और क्लू जो है वो क्लियरली दिया हुआ है। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन। It's not so your teacher is extraordinary or he is miraculous or he is amazing or he has infinite talent or efficiency or potential or strength or he has come to uh, come to ask for the appreciation, that's why he speaks like so. Not at all. I'm nothing at all, I'm not at all, I have nothing to explain anything, but I come to look at the view, situation, okay, or the key words of the sentence. And such words actually, determine, suggest, or reveal, the right choices. They actually, as I mostly say, they happen to be hence are elusive. Otherwise, I'm quite dull, I don't know how to explain, how to choose, or how to pick out the right choice there. So I ask my students, please, you should also follow conceptually. You should also follow to detect and diagnose the errors or the right choices in this way. This is technically good, I think. We should technically be strong to locate or trace the right choices or the right options there. This is the fantastic way. So those students who actually detect the errors or the right choices or the options there technically, they don't have problem to seek the accuracy or appropriate, sentence structures there. So this is the better way. I think this is actually the appropriate or perfect and ideal way to learn something usefully there. Rather than students mostly come to, seek something in the end of the sentence, what's written here, or what is said. They actually, learn or seek, right choices by translation, by translating the sentence. So whether it belongs to a present or continuous or whatsoever. So I say it's not good, it's not fair to deal with the sentence by translating, because in translation, you get your own meaning, you get the meaning of your own language. Okay, so that doesn't help you understand, choose the right option there. It's better that we should be technically better, technically appropriate. As I'm, I'm coming, I'm looking at seldom here now. Seldom is the keyword, and that's why this option, is correct. Leave, eliminate other options. Nothing at all. Eliminate the rest of the options, because when you look at the word keyword seldom, it's quite easy to judge or to notice the right choice here, right? So he seldom requests further information. Subject is singular, so this one is actually the right choice. So now you hopefully, okay. Number 4, sentence number 4, he is a translator. He is a translator. He dashed from one language to another language.
So it's his profession, you know, it's his profession, it's his business, it's his job, right? So when one has the job or one does the job like translating the things, it means it is his habit, you know, it is a business, it is a profession, you know. He's a teacher, he teaches. So it is what, you know, a general action, and general action, you know, occurs in present simple tense, nor any other tense. So what is the right one here? B second is right. He is a translator. He translates from one language to another because it's his profession, you know, it's his business, you know, it's his job, you know, and it's his tendency to write or to make, you know, translation. So this one is right there. So all the four sentences are quite easy to, I mean, give right choices there, right? Let's come to move the hits. Sentence number 5. शाबाश, जल्दी जल्दी करते चलें, तो आप करें ताकि, मतलब मैं इसीलिए थोड़ी बात कर रहा हूँ बीच में, ताकि आप राइट चॉइस भी जो है वो खुद ही कर लें मुझसे पहले। अच्छा, उसके बाद देखो, he dash all his dates, it's dates, not debit. Okay, he dash all his dates before he dash. Now we have already, you know, discussed I've, I mean, given you something in detail, okay, presently there. So here we have once again a keyword before. Keyword is there before. Now what is before? Is a conjunction, subordinating conjunction, right? And time conjunction, in other words, specifically speaking. So when this word comes, you know, this word actually prevents the use of modal verbs, you know, it actually stops modal verbs. Okay, so now here we have got A and B, and both of these options contain what? Modal verbs. Will pay, you know, it means something is like that, or will live here. I mean, this modal verb actually, sorry, this conjunction actually impact this part of the sentence. ये जो असर डालेगा इस पार्ट के ऊपर डालेगा। तो जब ये आ जाता है टाइम कंजंक्शन या कंडीशनल कंजंक्शन, तो देखो हम यानी मॉडल वर्ब से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा देखो ये इस्तेमाल करते हैं, he will pay all his debts before he leaves। चलो ये देखते हैं। अच्छा फिर he will pay, तो ये गलत हो गया। ये क्यों गलत होगा, हम देखते हैं ये क्यों गलत हुआ हमारा, मतलब इसको छोड़ दें। ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? क्योंकि टाइम कंजंक्शन के बाद दोबारा वापस मॉडल वर्ब आ रहा है, ये विल जो है मॉडल वर्ब आ रहा है, तो इसीलिए गलत हो गया। हमने पहले भी इसको पढ़ा है। अच्छा फिर ये इज पेइंग, चलो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर भी मॉडल वर्ब आ गया टाइम कंजंक्शन के बाद, तो नहीं आना चाहिए। अच्छा डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ही पे गुस्सा आ रहा है आपको, देखो गुस्सा आ रहा है, डी कैसे सही है? तो बात तो करने दो मुझे, अभी तक मैंने थोड़ी इसके ऊपर जो राइट का निशान लगा लिया है, बस सही है। इतने में गुस्सा आ गया कि आप कहाँ सही है, देखो आप गलत पढ़ा रहे हो। तो मैं तो बात कर रहा हूँ, थोड़ी बात तो करने दो प्लीज। अच्छा तो देखो, मतलब सही में नहीं कह रहा हूँ, अभी गलत हो गया जिसे आपने गुस्सा किया, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमने पे प्लूरल कर दिया, ही पे देखो प्लूरल हो गया, ठीक है ना? तो ही पे नहीं होगा, पेज होगा, पे हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है, इधर नहीं बन रहा, तो इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ये होगा ही विल पे ऑल हिज डेट्स बिफोर ही लीव्स, ही विल पे ऑल हिज डेट्स बिफोर ही लीव्स। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो रहा है। तो अब ये राइट ऑप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक में भले आप फ्यूचर इस्तेमाल करें, जिस जगह कंजंक्शन नहीं है तो हमने इस्तेमाल कर लिया, कंजंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है तो इधर आपको मॉडल नहीं इस्तेमाल करना। इससे पहले अगर इस्तेमाल करें विल शैल कैन कुड में, तो भले आप इस्तेमाल करें। तो राइट चॉइस देखो इसकी कौन सी हो रही है, राइट चॉइस हो रही है ए। हम आते हैं 6 पे, डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज, कीवर्ड पढ़ा है हर सेंटेंस के अंदर। टेंसेस में मतलब ये बहुत आसानी है कि जब भी हम सेंटेंस को देखते हैं तो कोई ना कोई कीवर्ड जो वो सामने आ जाता है और उसको देख के हम आराम से कर लेते हैं। डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज डैश इन द वेस्ट, ठीक है, डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज डैश इन द वेस्ट, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पर अगर सेट होता तो चलो ठीक है,
तो हम यहाँ पर ईस्ट लिख ले तो मेरे ख्याल में ज्यादा होगा। राइज इन, सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता। तो डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज हेज राइज इन, अभी जनरल ट्रूथ की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, और ऑलवेज भी लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ऑलवेज में तो आपने कहा कि प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करें, ऑलवेज के साथ आप बोलेंगे कि सर आपने हमें पढ़ाया कि कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें, प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करें। लेकिन अब यहाँ पर तो देखो ऑलवेज के साथ आपने, आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल ना करें। भाई यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस थोड़ी है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस वाला सेंस थोड़ी है नेगेटिव कि हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर जो है वो आप ये यानी पॉजिटिव सेंस इस्तेमाल करें। तो नेगेटिव आप बोलेंगे सर नेगेटिव है, जैसे सूरज निकलता है आप पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, ये कौन सा पॉजिटिव सेंस है? हमें हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और हम चाहते हैं कि 10-11 बजे तक सोने वाले और वो सुबह जो वो 6 बजे उठे, तो ये कोई कौन सा अच्छा सेंस है? आप खुद हमसे पूछे कि क्या हालत हमारी लगी हुई है, अभी हमारी आंखें भी नहीं खुलती, पता भी नहीं पड़ रही आप क्या बोल रहे हो। हाँ, इस सेंस में अगर आप अपने लिए लगाएं तो आप लगा लें, लेकिन होगा गलत, होगा गलत। ठीक है। डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज राइजेस, अब ये हो गया जनरल ट्रूथ की बात होगी, इसीलिए ये आपका सही हो गया, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आप इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद यानी देखें 7 नंबर है, सेंटेंस नंबर कौन सा है? सेंटेंस नंबर 7 है। 7 के अंदर देखें, व्हाट ही डैश ही टीचेस वेरी वेल। ठीक है, अब आप देखो ये भी मतलब उसके प्रोफेशन की बात हो रही है, उसके हैबिट की बात हो रही है, उसके रूटीन की बात हो रही है, मतलब ये जो भी पढ़ाता है ना गजब का पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। ठीक है ना, ये एक्चुअली बात है, मतलब जितना भी पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है, वाह वाह, इतना हमने कभी नहीं देखा कि कितना अच्छा पढ़ाता है। तो भाई जब यही बात उसके अंदर है, वही उसकी रेगुलर एक्टिविटी है, वही उसका रूटीन है, वही उसका काम है, तो वो काम हम किस में लिखेंगे? वो काम भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, किसी दूसरे टेंस में नहीं लिखेंगे। व्हाट ही टीचेस वेरी वेल, मतलब जो भी करता है काम, जो भी पढ़ाता है, जितना भी बताता है, तो बस, तो मतलब एक्सप्लेन करने का मकसद ये कि ये उसका रूटीन है। तो रूटीन मतलब हम सिंपल टेंस में ही देते हैं, सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल अब आराम से कर रहे होंगे, आप खुद मुझसे पहले पहले ये सारे सेंटेंसेस जो है वो आप कर रहे होंगे, सारे सेंटेंसेस आप पहले पहले खुद ही कर रहे होंगे, तो उनमें आपको कोई इश्यू नहीं हो रहा होगा। ठीक है, नहीं इश्यू हो रहा होगा मेरे ख्याल में। एक मिनट, इसकी जो वो इसकी मैं की थोड़ी बना लूं, उसके बाद फिर आपको मसला होगा। आप बोलते हो सर हमें पता नहीं पड़ता, की थोड़ी मैं बना लूं। हाँ, तो ये हमने किया था इसको, डू यू थिंक दैट द सन ऑलवेज राइजेस, और यहाँ पर हमने जो वो ईस्ट लिखा था वेस्ट को खत्म करके, और यहाँ पर टीचर्स था, और अब जो था सॉरी, अब जो था हमारा सेंटेंस वो था dash anyone dash his book at this moment, sorry, dash anyone dash his book at this moment। ठीक है ना, तो आप देखें मतलब एट दिस मोमेंट कीवर्ड दिया हुआ है, इसको देकर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? इज एनीवन क्लोजिंग हिज बुक एट दिस मोमेंट, या डज एनीवन, कौन सा होगा? तो यकीनन इसके अंदर बी जो है वो सेकंड राइट होगा। इज एनीवन क्लोजिंग हिज बुक एट दिस मोमेंट, देखो ये राइट। ठीक है ना, ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे देखो हमारा 9 नंबर, डैश, देखो डैश आई, सॉरी आई डैश द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट दिस मोमेंट। ठीक है ना, तो वही बात जो है वो कीवर्ड की देखो आ गई, आई डैश द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट दिस मोमेंट। तो बेटा एट दिस मोमेंट देखो कीवर्ड दिया हुआ है, अब इसको देखकर अब इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन या वो नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड दिया हुआ है, बहुत आसान है। नंबर 10 को आप देखें, who dash the heaviest loads nowadays,
अब ये भी नाउ डेज की बात की हुई है, मतलब आज की बात हो रही है। और ये जो वो एक्शन हमने पढ़ा था अराउंड नाउ, आपको याद होगा जो यूज मैंने आपको बताया था अराउंड नाउ, तो ये भी मतलब कंटिन्यूस का है, आप खुद देख लें। और मैं पीडीएफ आज भेजूंगा दोनों टेंसेस की, ठीक है ना। अगर आपको कहीं बीच में प्रॉपरली नहीं मिले तो वो भी मैं भेज दूंगा, लेकिन यहाँ पर नाउ डेज लिखा हुआ है तो इस कीवर्ड को देकर मैं मतलब ये राइट ऑप्शन, बस बहुत आसान है। देखो कितना जो वो शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे वर्ड नजर आता है और हम ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। तो हु डैश द हेवीएस्ट लोड्स नाउअडेज इज कैरिंग। अच्छा, लुक एट द ऑफिशियल्स, लुक एट, तो आपको पता है मैंने ये आपको बताया। मैं अभी अगर आपको मतलब इस तरीके से यानी बात करूं कि लुक एट या लुक, तो इसका मतलब है कोई चीज प्रोग्रेसिव में हो रही है, कोई चीज कंटिन्यूस में हो रही है, ठीक है ना। तब देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। लुक एट द ऑफिशियल्स, दे डैश द फ्लैग, दे डैश द फ्लैग, तो मतलब ये क्या होगा, आप देखें कौन सा टेंस जो है वो मतलब सही होगा। और फिर स्पेलिंग भी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पर मतलब बी भी पढ़ा है और सी भी पढ़ा है, दोनों ऑप्शंस पढ़े, लेकिन इनमें एक ही सही है, दोनों थोड़ी सही है। तो आप देखो जो राइट ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी राइट ऑप्शन, क्योंकि स्पेल के हिसाब से भी हमें देखना है, जो सही होगा वो यानी SALUTING, ये सही होगा, और ऊपर वाले की स्पेल गलत होगी। और फिर मैंने लुक को देखा जो कि प्रोग्रेसिव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो 12 है, हु डैश नियर द हाउस एट दिस टाइम, ही अभी कौन जो वो गुजर रहा है, अभी कौन गुजर रहा है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। मिसाल के तौर पर बोलूं हु इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, हु इज स्लीपिंग, सब बोल रहे हैं कि सर हम सारे सो रहे हैं, हम कहाँ जाए भला, किसको पढ़ाएं फिर, ठीक है ना। तो मतलब जो भी है, आपका जवाब भी सही है और आपका ये काम भी सही है, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो ये होगा क्या, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात, ठीक है। हु इज पासिंग नियर द हाउस एट दिस टाइम, ये आपका सॉरी राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये राइट ऑप्शन हो गया, ये राइट ऑप्शन हो गया, समझे। तो ये हुआ आपके आपके 12 सेंटेंस। उसके बाद हम चलेंगे 13 नंबर पे, देखो सेंटेंस नंबर 13। I have put some oranges in the bag. Now the grocer dashed in. Now कीवर्ड दिया हुआ, कौन सा वर्ड, नाउ दिया हुआ है। तो देखिए जब नाउ दिया हुआ है कीवर्ड है, अब हमने ये पहले ही कर लिया है, अब सिर्फ आप जो अटेम्प्ट करते जाए, चूज करते जाए, कीवर्ड पढ़ा है, मुझे खुद को पता नहीं है, जब इस पे नजर पड़ी तब मैंने राइट ऑप्शन देखा, अदरवाइज मुझे क्या पता, मैं भी गलत कर देता। अच्छा, फिर 14 को देखें, वी डे सो मेनी लेटर्स दैट वी कांट आंसर देम ऑल, वी डे सो मेनी लेटर्स, ठीक है ना। तो एक तो इसके अंदर सिवाय इसके और कोई ऑप्शन आपका राइट नहीं, वी आर रिसीविंग सो मेनी लेटर्स दैट वी कांट आंसर देम एट ऑल, बहुत सारे में जो है वो लेटर्स मिल रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। वी के साथ रिसीव्स नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये पास्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट पड़ा है, वर रिसीविंग नहीं होगा क्योंकि पास्ट हो जाएगा। इसी तरीके 15 को देखें, शी देश इंग्लिश विद द चिल्ड्रेन सो दैट दे विल लर्न इट वेल, तो मतलब ये एक रूटीन है, देखो तो इसके अंदर रूटीन के हिसाब से हम जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इस्तेमाल करेंगे स्पीक्स, क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पीक्स इस्तेमाल करेंगे, और कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद 16 देखो, ट्रीज डैश मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर, जनरल ट्रूथ है, कौन सा बेटा जनरल ट्रूथ का है, ट्रीज डैश, तो ये क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन है, ग्रो होगा, ट्रीज ग्रो मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। उसके बाद 17 है, banks dash more money these days to encourage businessmen, banks more dash more money these days, ठीक है। banks are lending, देखो lending मतलब गिविंग, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, और मैंने इसको these days, और these days वाला इससे पहले भी हमने किया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद अभी थोड़े इतने ज्यादा नहीं है, इरर के,
देखो एरर के सेंटेंसेस हैं। I do not see the red plum on the plate. Who does it? तो ये मतलब अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको, हमने आज शुरू करने वाला था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, तो ये होगा हु हैज ईटन इट, मतलब किसने ये किया है। तो यहाँ पर यानी इसका ए होगा, ये क्यों होगा अब मैं पढ़ाऊंगा तब। और फिर 19 पे हम आते हैं, as soon as I will teach, as soon as I will reach, I will call you. as soon as, अब एरर देखनी है कि इसके अंदर एरर कौन सी है। और आपको तो पहले पता होगा कि अगर टाइम कंजंक्शन आएगा या कंडीशनल कंजंक्शन आएगा, तो टाइम कंजंक्शन या कंडीशनल कंजंक्शन के बाद क्या आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसके अंदर जो एरर होगी वो देखो 20 सेकंड, यानी ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ये बी ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ, ये डी ऑप्शन हुआ। तो गलती किसकी होगी? ये होगी, यानी एज सुन एज आई रीच होगा। करेक्ट क्या होगा? मतलब खाली सिर्फ आप रीच लिखेंगे ना, तब ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो ठीक है, आज इतनी प्रैक्टिस काफी है। अब हम शुरू करेंगे अगले क्लास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये सब आपके टेस्ट में, जनरल टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी पंक्चुएशन कोलन मैंने नहीं पढ़ाई, देखते हैं टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा, फिर दूंगा टेस्ट के अंदर, नहीं पढ़ाया तो नहीं दूंगा। ठीक है।